शेयर करने वाली हूँ कैसे आप एक नाइटी को, सिंपल नाइटी को कैसे आप एक स्कर्ट एंड कोर्सेट में डिज़ाइन करके बना सकते हैं। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मेकिंग अ कोर्सेट, आई हैवंट मेड इट बिफोर। एंड ये बोनी जो कोर्सेट में मैंने यूज़ किया, इसको मैंने करीबन 3 साल तो हो गए खरीद के रखे हुए। नाइटी जो है मैं 150 रुपीज़ में ली है। एंड वन मोर थिंग, द क्वालिटी ऑफ द वीडियो माइट नॉट बी द बेस्ट बिकॉज आई एम शूटिंग एट द नाइट टाइम। मेरा लाइटिंग इतना प्रॉपर नहीं है, प्लस रिंग लाइट एक लगाया बट ये मतलब इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, सस्ता सा था। बिकॉज मैं ये इंट्रो का रात को शूट नहीं करती, बट आई हैड टू बिकॉज कल मैं वापस जा रही हूँ हॉस्टल। मैं वोट देने के लिए आई थी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी मुझे रात को ही इंट्रो पार्ट शूट करना पड़ा। फाइनल लुक का वीडियो को मैंने शूट नहीं किया अब तक, वो मैं हॉस्टल जाके शूट करूँगी। सो हियर आई एम स्टार्टिंग बाय सिम रिपिंग ऑल द सिम्स यूजिंग अ सिम रिपर। मतलब आपको जितनी भी सिलाई है नाइटी में सब कुछ खोल लेना है, बिकॉज वी वांट टू सेव एज मच फैब्रिक इज़ पॉसिबल। बिकॉज बाद में फैब्रिक कम पड़ जाएगा, बिकॉज हमें स्कर्ट ऑन और टॉप दोनों बनाना है, तो आपको इतना सा भी फैब्रिक वेस्ट नहीं करना। बिकॉज एट द एंड जब मैंने इसको बना लिया ना, एकदम मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल बराबर सा फैब्रिक आया है। तो इसीलिए फैब्रिक सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आपको किसी भी चीज़ को अपसाइकिल कर रहे हो, प्लीज़ डू नॉट अननेसेसरली वेस्ट एनी फैब्रिक। So I'm just going to show you the design, what I'm thinking and what I'm planning to make. So this is the top front side. So I wanted this like princess seam, sleeveless and square neck and straight, like not very crop but yet not too long. And then this is the back, and it's going to be back open. So we are going to make these loops on the back through which we're going to put the tie that's going to put everything together at the end. And then these are the sides. I think I may put a dart here, right here. And then for the skirt, I'm just planning to make it a simple A-line skirt. So मैंने previously भी A-line skirt बनाने का एक video share किया है. So I'm recently in love with this knee-length skirts. So I'm planning to just make a simple A-line skirt. Okay, so this is an old sari of my mother that she doesn't use anymore. So I use this sari to first draft the pattern pieces. So I'll first try it on this waist fabric, and then if it goes right, I'll trace it into drafting papers, and then I'll finally use those papers to cut my measurements are neck width is 4 inch if you take it from the folded side. Then my bust is 34, so divided by 4 is 8.5, and I have taken here 1 inch of an extra seam allowance. And then the total length, I would say I took it 19 inches. And then I initially wanted it straight for the front side, but then eventually I changed the design, and on the center it is longer, and when it goes to the side it's like S shaped, and it shows a little bit of waist, and it's shorter than the center part. Okay, so I'm talking about the bottom side here. So neck depth I have kept is 7 inch. You can even, I prefer if you want to show your cleavage, then 7 is okay, but if you're if you want it a little modest, so I would prefer you go with 6. My waist is around 30, so I took 7.5 inch here. And then for the princess seam, from the center mark it 4 inch away, and then make a dart of about 1.5 inch, and then the length of the dart should be approximately 4 to 4.5 inch. And then from the armhole side also you need to make 1 inch dart, and then connect that line in a princess shape, and then cut. And everything I just told is about the front side. The back side is similar, but back side you do not need the princess seam, so it's gonna be straight, so you don't need to all these extra measurements. And the back neck is 5 inch. ओके, सो कट किए गए पीसेस को मैंने स्टिच कर लिया है। तो कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी तो मुझे अभी ठीक करना है इन सबको। आर्म होल थोड़ा ऊंचा है तो आर्म होल को नीचे थोड़ा दबाना है, एंड देन मुझे नेक डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, एंड ओवरऑल इट्स गुड। तो सारी के पीसेस को करेक्ट करके मैंने ड्राफ्टिंग पेपर में ड्राफ्ट कर लिया है। अभी उन ड्राफ्टिंग पेपर को यूज़ करके मैं लाइनिंग फैब्रिक को कट कर रही हूँ। फिर से मुझे रिस्क नहीं लेना है, इसलिए मैं मेन फैब्रिक से भी पहले लाइनिंग को पहले स्टिच करके देखूँगी। अगर करेक्ट है तो ही मैं मेन फैब्रिक पे काम करूँगी, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड फैब्रिक है। अभी मैं लाइनिंग को पहले स्टिच करके देखूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने लाइनिंग को स्टिच कर लिया है, एंड कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट चाहिए वहाँ पे पिन्स लगा लिया है मैंने। कहाँ कहाँ एक्स्ट्रा सिलाने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ थोड़ा बढ़ाने कमाने की ज़रूरत है, मैंने मार्क कर लिया है। तो अभी इन फाइनली जो करेक्ट पीसेस को ट्रेस करके मैं जो मेन फैब्रिक है उसके पीसेस को कट कर लूँगी।
तो मुझे डर लग रहा था कि स्कर्ट के लिए इनफ फैब्रिक नहीं बचेगा अगर मैं पहले टॉप से शुरू करूँगी, तो इसीलिए मैंने स्कर्ट के लिए पहले काट के रख दिया और जो बचेगा उसमें से हम टॉप को कैसे भी करके निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्कर्ट का लेंथ यहाँ पे लिया है 29 इंच। यहाँ पे मैंने 29 इंच पे मार्क कर दिया है। एंड कमर जो मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क किया है बिकॉज मेरा 7.5 जितना चाहिए मुझे वेस्ट मेजरमेंट, तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ही ले लिया है यहाँ पे। एंड इस तरीके से डायगनली लाइन खींचेंगे और जोड़ देंगे। सेंटर में स्कर्ट को बीच से 1 इंच दबा देंगे और सिमिलरली मार्क करेंगे नीचे की तरफ भी, इसको 1 इंच ऊपर उठा देंगे और ऊपर से लेके नीचे तक 29 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाफ सर्कल स्कर्ट बनाने के लिए हमारे पास इनफ फैब्रिक नहीं है, तो अगर हम ऐसे भी बनाएंगे तो हाफ सर्कल को रिजेंबल करता है ये, तो फ्लेयर अच्छा दिखता है दिखने में। टॉप का जो लाइनिंग पीसेस है उनको ट्रेस करके मैं अभी मेन फैब्रिक को कट कर लूँगी। तो ये पार्ट बहुत क्रूशियल है, आपको बहुत आराम से सोच के करना है क्योंकि मैंने गलती कर दी थी। मैंने बैक साइड को एक ही साइड को 2 बार कट कर दिया क्योंकि मैंने आमने सामने रख के पीसेस को नहीं काटा, क्योंकि एक पीस एक जगह से निकल रहा था, दूसरा पीस दूसरी जगह से, एक जगह से दोनों पीस नहीं निकल रहा था। तो उसके वजह से लास्ट में मैंने देखा कि मैंने एक ही साइड के दोनों पीसेस को तो मिल नहीं रहा था, बाद में मुझे जॉइन देना पड़ा बिकॉज फैब्रिक इतना कम था। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अगर पीसेस को कट करो तो आमने सामने रख के कट करो ताकि गलती की गुंजाइश ही ना हो। अभी मैं सारे पीसेस को असेंबल करके स्टिच कर लूँगी। जो मेन फैब्रिक है उसको एक्स्ट्रा से स्टिच करूँगी और लाइनिंग फैब्रिक को एक्स्ट्रा से, बाद में हम इसको जॉइन करेंगे। तो आर्म होल में याद है मैंने बोला था कि थोड़ा उठा हुआ है, तो उसको मैं अभी थोड़ा सा डेप्थ दे रही हूँ यहाँ पे मिलाने के लिए। एंड अभी मैंने यहाँ पे ना लाइनिंग पीस का जो बॉटम पार्ट है फ्रंट साइड का उसको भी कट कर लिया था, बट मैं ये शूट करना भूल गई। बट अभी उसको रख के जैसा लाइनिंग है बिल्कुल वैसा आपको स्टिच करना है। लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक को जब आप स्टिच कर रहे हो तो मेक श्योर कि राइट साइड्स दोनों फैब्रिक का एक दूसरा की तरफ फेस करता हुआ अंदर की तरफ होना चाहिए और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ, दोनों साइड्स का। एंड नेक को स्टिच करेंगे, आर्म होल को स्टिच करेंगे एंड बॉटम को स्टिच करेंगे, बाकी साइड्स को रहने देंगे। साइड से हम उसको उल्टाएंगे, छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि उल्टाने के बाद फिनिशिंग अच्छा है। तो अभी आपको इस तरीके से बोनिंग केसेस बना लेने हैं। 1 इंच का या 1.25 इंच का इस तरीके से फैब्रिक का पीस लेना है, उसको दोनों तरफ इस तरीके से फोल्ड करके आयरन कर लेना है। मैंने बहुत सारे पीसेस को आयरन कर लिया है। तो अभी इन केसेस में बोनिंग को डालेंगे हम। तो इस तरीके से मैं एक प्रिंसेस सीम वाले सिलाई के ऊपर एक बोनिंग डाल रही हूँ, बोनिंग की इसको स्टिच कर रही हूँ। इस तरीके से कपड़े को रखना है, पीस को जो आपने आयरन किया है उसके दोनों एंड्स पे स्टिच करना है और उसके बीच से आपको बोनिंग को डालना है। तो उसको बोनिंग केसिंग या बोनिंग चैनल आपको जो बोलना है वो बोल सकते हो। और बोनिंग मैंने आपको पहले भी मैंने बोनिंग का शॉर्ट शेयर किया था जब मैंने ख़रीदा था। तो इस तरीके से बोनिंग केसिंग्स को मैं स्टिच कर लूँगी जहाँ जहाँ मुझे बोनिंग्स चाहिए। तो फ्रंट साइड में मैंने टोटल 6 बोनिंग चैनल्स डाले हैं और बाद में मैंने उनमें से 2 बोनिंग्स को हटा दिया बिकॉज बहुत ज़्यादा रिजिड और अनकम्फर्टेबल लग रहा था। तो मैंने फ्रंट में लास्ट में जाके 4 बोनिंग्स ही रखी और बैक में सिर्फ 2 बोनिंग्स हैं जहाँ पे हम लूप्स डाला है मैंने। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड में 2 डार्ट्स दे दी है और डार्ट्स को मेन फैब्रिक और लाइनिंग को एक्स्ट्रा से करके स्टिच करनी है। तो अभी मेन फैब्रिक को लेंगे, राइट साइड को अंदर की तरफ रखेंगे, उसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे, लाइनिंग का भी राइट साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ होगा। नेक को स्टिच करेंगे, तो नेक और आर्म होल दोनों को स्टिच कर लेंगे। बैक के 2 पीसेस है, दोनों पीसेस में हम ये कर लेंगे। इसके बाद बॉटम जो है बैक का उसको हम अभी नहीं स्टिच करेंगे, हम पहले आर्म होल को जोड़ेंगे, इसके बाद बॉटम को स्टिच करेंगे। ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया न्यू मेथड आर्म होल स्टिच करने का, क्योंकि इसके बाद जो फिनिशिंग है ना वो अच्छा लगता है देखने में और एकदम नीट एंड क्लीन फिनिश होता है, नो रॉ एजेस लाइक पॉपिंग आउट। ऑलरेडी रेडी जो हमारा फ्रंट साइड है उसको हमें बैक साइड को उल्टाया हुआ ही रहेगा ये पीस, उसके अंदर शोल्डर वाले वो जो स्ट्रैप के अंदर से लेके जाना है और उसके बाद आर्म होल को जोड़ना है। इसके बाद जब हम इसको खोल देंगे ना तो फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। ओके, सो हियर आई डिड द मिस्टेक। तो मैंने क्या किया, मैंने बैक पीस को एक ही साइड के दोनों बैक पीस को कट कर लिया, अलग अलग होना चाहिए, लेफ़्ट पार्ट का एक राइट साइड का। तो मैंने जो मेरा लेफ़्ट साइड का है ना उसको ही मैंने 2 बार कट कर लिया, तो बाद में प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने बाद में जॉइन दे के जैसे तैसे निकाला एक पीस। 10 मिनट के लिए मैं रो रही थी, मैं सोचा कि ये नहीं होगा। तो बैक पीस जो है उसको मुझे ट्रिम करना पड़ा नीचे से, क्योंकि मैंने फ्रंट पीस का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। सेंट्रल में फ्रंट पीस थोड़ा सा लॉन्गर है कंपेयर टू द साइड से इस तरीके से कर्व होके आके थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, शॉर्ट है। तो उसको मिला के वो जो साइड का शॉर्ट है उसको मिला के मैंने बैक साइड को भी ट्रिम कर लिया एंड ठीक ही हुआ, वरना फैब्रिक नहीं जुड़ता। अभी बैक साइड के बॉटम के पीसेस को मैं रॉन्ग साइड की तरफ स्टिच कर लूँगी, राइट साइड्स को अंदर रख के फिर से, और अभी हम इसको उल्टा देंगे। एंड अभी ऑलमोस्ट रेडी है, साइड से अटैच करना है और बाद में जो हमें बैक को क्लोज़ करना है लूप्स डाल के वहाँ पे टाइज लगेगी।
एंड लिटरली इस कोर्सेट ने मेरा इतना दिमाग गर्म कर दिया कि मैं लिटरली अपना सर पटक रही थी कि मैंने ये क्यों बनाने को डिसाइड किया। बट बिकॉज मे बी मेरा फर्स्ट टाइम है तो मे बी आई वॉज जस्ट ओवर स्ट्रेस्ड। मे बी एक्सपीरियंस के साथ साथ ये ठीक हो जाएगा। ओके, सो लेट्स अटैच द कोर्सेट फ्रॉम द साइड्स। अभी फ्रंट और बैक पीसेस के साइड्स को अटैच करेंगे हम। तो पहले मैं रॉन्ग साइड को एक दूसरे की तरफ फेस करके राइट साइड में स्टिच लगा रही हूँ एंड इसके बाद हम इसको उल्टाएंगे। ये बेसिकली इसलिए किया जा रहा है ताकि हम रॉ एजेस को हाइड कर पाएँ एंड अगर सोच रहे हैं कि अगर आप इस सीम पे बोनिंग लगाना चाहते हैं, मैं नहीं लगा रही हूँ, मुझे अनकम्फर्टेबल लगता है एक्चुअली ज़्यादा स्टेप होने से, तो आप ना इसको एक केसिंग बना के भी इसमें भी बोनिंग डाल सकते हो। तो मैं बेसिकली ये रॉ एजेस को हाइड करने के लिए मेथड यूज़ करती हूँ। तो अभी पलट के रॉन्ग साइड में स्टिच कर लेंगे इस तरीके से, और ये दोनों साइड्स में करना है आपको सेम काम। लेट्स जस्ट ट्राई इट ऑन। ये फर्स्ट ट्रायल है, तो एज यू कैन सी ठीक लग रहा है मुझे। आई एम लाइक हैप्पी विद व्हाट आई हैव डन विद माय फर्स्ट ट्राई। बैक से मैंने पिन से अटैच करके रखा है और अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से डोरी जैसा स्टिच करते हैं बिल्कुल वैसे ही स्टिच कर रही हूँ। तो मैं इसको लूप्स बनाने के लिए स्टिच कर रही हूँ बेसिकली। तो अभी हम ये जो हमारा बैक पीस है ना, इसमें इस तरीके से लूप्स बना के रखेंगे। डोरी जैसा एक स्टिच कर लेंगे और इस तरीके से काट के लूप्स बना के रखेंगे। और दूसरे साइड में भी सेम विथ में सेम मेज़रमेंट पे आपको लूप्स डालनी है और उन लूप्स से हम हमारा जो टाई है जिससे हम लोग टाई करेंगे बैक में उसको डालेंगे। तो जैसा हमने पिन से सिक्योर किया था बिल्कुल उसी निशाने पे हम अभी स्टिच कर लेंगे। और अभी ना मैं यहाँ पे एक पीस ऑफ क्लॉथ ऐड कर रही हूँ ताकि हम जो लूप्स अटैच करने का रॉ एजेस है उसको हाइड कर पाए और लूप्स को बेसिकली स्ट्रेंथ दे पाए, थोड़ा सपोर्ट दे पाए उस एरिया को। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक केसिंग बना रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे जो हमारा क्या था उसका नाम, हाँ, जो हमारा बोनिंग है उसको डाल पाए। बिकॉज इस एरिया में ना बड़ा ऐसा फोल्ड हो जाता है, अगर हम इसमें बोनिंग डालेंगे ना तो हमें थोड़ा फर्मनेस और सपोर्ट मिलेगा। देखिए बोनिंग को मैंने डाल दिया और अभी जिस तरफ से मैंने बोनिंग डाला था उस एंड को भी मैं क्लोज़ कर दूँगी इस तरीके से। और जो हमारी लूप्स है उसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा सिलाई दे रही हूँ क्योंकि लूप्स को हम खींचेंगे टाइस बांधते वक्त, तो तब खिंचाव में वो बाहर निकल के ना आ जाए। और अभी जितनी भी हमने केसिंग्स बनाई थी बोनिंग की, उन सारी केसिंग्स में मैं बोनिंग को डालूंगी। और बोनिंग को डालने से पहले ना बोनिंग का जो आपका एकदम टिप होगा उसको ना इस तरीके से कैंची से काट के ना आप इसको थोड़ा राउंड कर लीजिए, वरना वो ना पोक करके उस तरफ से निकल जाएगा। तो ये करना ज़रूरी है, दोनों एंड्स में ही आपको ये कर लेनी है। एंड इस तरीके से देखिए मैं कितने आराम से बोनिंग्स को डाल रही हूँ। और उसके बाद डालने के बाद ना हमें बोनिंग जिस एंड से हमने डाली है उस एंड को हमें क्लोज भी करना है, वरना बोनिंग वहीं से निकल के आ जाएगी। तो ये देखिए बोनिंग डालने के बाद कितना ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर आया हमारे कोर्सेट में। अभी हमारे बनाए हुए लूप्स में हम हमारा जो टाई है उसको डालेंगे। टाई बेसिकली डोरी बनाने का सेम मेथड है। आपको स्टिच करना है 1 इंच के फैब्रिक से एकदम बारीकी से साइड से खींच करना है, इसके बाद उसको उल्टा लेना है सुई धागे की मदद से, बस वही मेथड है। आपको इस तरीके से कोर्सेट बन के रेडी हो गया। अभी हम स्कर्ट पे काम करेंगे। तो स्कर्ट के दोनों पैनल्स को लाना है इस तरीके से, और जो स्कर्ट का जो साइज़ है ना उसमें मैं उसको थोड़ा और छोटा कर रही हूँ, तब ना दिखने में अच्छा लगेगा। इवन नहीं होगा, अनइवन होगा ना बॉटम पार्ट, तो उसी से मैं दोनों पल्ले को सेम बराबर से काट लूँगी। और अभी दोनों साइड्स से हम इसको अटैच कर लेंगे। तो दोनों जो स्कर्ट के साइड्स है दोनों साइड्स को हम पहले अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच का सेम अलाउंस दे रही हूँ मैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं क्योंकि फैब्रिक कम है मेरा यहाँ पे। तो ये देखिए दोनों पल्ले मेरे अटैच हो गया साइड से। तो अभी हम इस तरीके से 3.5 इंच का एक फैब्रिक लूँगी। मैं 3.5 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे इलास्टिक के साइज़ से थोड़ा सा 1/2 इंच बड़ा है। आपका इलास्टिक का जितना साइज़ है उस 1 इंच आपको बढ़ा के लेनी है। तो मेरा इलास्टिक कम से कम 2 इंच का जितना होगा, 2-2.5 इंच का होगा, तो इसलिए मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। तो ये हमारा वेस्ट बैंड होने वाला है। इस वेस्ट बैंड को हम जो हमारे स्कर्ट है, स्कर्ट के जो वेस्ट पार्ट है हमारा ऊपर के वेस्ट पार्ट में हम स्टिच कर देंगे और हल्का सा गैप रखेंगे। उस गैप से हम इलास्टिक को अंदर डालेंगे सेफ्टी पिन की मदद से। और मैं ये पार्ट बोलना भूल गई कि वेस्ट बैंड को ना आपको पहले दोनों एंड्स को वेस्ट बैंड को मेज़र कर लेना है, बिल्कुल कमर के बराबर, वेस्ट के बराबर लेना है। उसके बाद दोनों एंड्स को जोड़ लेनी है और जोड़ने के बाद उसको इस तरीके से अटैच करनी है। अभी मैंने अपनी कमर को मेज़र करके इलास्टिक को काट लिया है। यहाँ पे आपके कमर से आपको 3 इंच जितना छोटा काटना है इलास्टिक को। इसके बाद एक सेफ्टी पिन की मदद से मैं यहाँ पे इलास्टिक को डाल रही हूँ। बट मेरा कैमरा एंगल इतना ख़राब है कि आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, कवर ही नहीं हो रहा है। दिस हैपन्स जब आप अकेले सब कुछ शूट कर रहे हो, एंड आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी। तो अभी इलास्टिक के दोनों एंड्स को मैं स्टिच कर लूँगी। मैं जिगजैग स्टिच का यूज़ करती हूँ। इसके बाद इलास्टिक को स्टिच कर लेने के बाद जो हमारा खुला हुआ एंड था ना वेस्ट बैंड का, जहाँ से हमने इलास्टिक डाला, उसको भी हम क्लोज़ कर लेंगे सिलाई करके। और अभी मैं यहाँ पे बॉटम पार्ट में ना रोल हेम कर रही हूँ। पीको का तो स्कर्ट का जो बॉटम है उसको पीको कर लेंगे। एंड गाइस ये हमारा लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमारा कंप्लीट होने वाला है स्कर्ट एंड टॉप सेट।
आप इसमें पीको की जगह डबल फोल्ड करके हेम कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको जैसा पसंद हो।